If I'll tell you one thing, you must be agree on that with me, that everyone is very conscious about their looks. If they are not good looking, this likeness always remain in one corner of their heart. And whenever they are doing any kind of task, it comes before them and just deprive them in giving their 100%. They have always a kind of feeling that is of discontent, or something is missing like that. But if we see that means looks are not in our hand, it is nature given, right? But you can enhance your personality in a other manner, like, and the real weapon, the real source, if I'll tell you, that is the education, right? The exact example we are going to see in next chapter of our Footprints Without Feet, that is Bholi, written by Khwaja Ahmad Abbas. This is the chapter of a girl who was not good looking, but how she was able, or she got success in changing the mentality about her of different peoples who were there surrounded her, right? So आज हम ये पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे ऑथर की इंफॉर्मेशन, दैन वैल्यू पॉइंट्स इंक्लूडिंग सम क्वेश्चन आंसर ऑफ शॉर्ट, लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंशन. At last I'll provide you the word meaning and summary. So let's start. Khwaja Ahmad Abbas was a famous Indian film director, novelist, a screenwriter, and a journalist in Urdu, Hindi, and English language. He made movies like Saath Hindustani, that had come in 1969, and Do Boond Pani. Saath Hindustani, Do Boond Pani, 1974 and 69, that won the National Film Award for Best Film on National Integration. Abbas wrote the screenplays of some of the Raj Kapoor's best films such as Awara, Shri 420, Mera Naam Joker, and Bobby. He was born in Panipat on June 7th, 1914, and died on June 1st, 1980, at the age of 72 years. सो अगर हम देखें तो ख्वाजा अहमद ये मूवी, फिल्म लाइनिंग, स्क्रीन प्ले एंड राइटिंग, इस सब से रिलेटेड थे. मतलब पूरी जो इनकी लाइफ थी वो किससे रिलेटेड थी? टू नो द सोसाइटी, टू राइट अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स और जॉनरा ऑफ द सोसाइटी, एंड टू प्रेजेंट अगेन टू द सोसाइटी. इन्होंने बहुत सारी नॉवल लिखी हैं, मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, स्क्रीन राइटर थे, ये जर्नलिस्ट थे. कितनी सारी लैंग्वेजेस इनको आती थी. उर्दू जस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज ओनिंग द रिलीजन ऑफ इस्लाम. हिंदी आती थी इनको और इंग्लिश आती थी. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म फीचर की थी, जो बनाई थी, जो साथ हिंदुस्तानी, फीचर्ड बाय अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी एंड 6 अदर ब्रदर्स. दो बूंद पानी, दैट इज़ ऑल्सो अवार्ड विनिंग मूवी. उसके अलावा इन्होंने राज कपूर की बहुत सारी फेमस मूवीज़ में स्क्रीन प्ले किया था. आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी, ये सारी ही सुपरहिट मूवीज़ थी उस टाइम की जिसमें इन्होंने अपना काम किया था. इन्हीं की ही लिखी हुई आज हम एक फैंटास्टिक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, भोली, दैट विल डेफिनेटली फिल यू विथ confidence. The student who are lagging behind or who are losing their confidence just because of their looks, they have to listen a lot of things. I am sure that after going through this chapter, now you will definitely gain some confidence and can cover up the lackness that you are having. सो दिस इज भोली. चैप्टर स्केच देखते हैं. सबसे पहले, भोली इज अ स्टोरी ऑफ सुलेखा. ये नाम है कैरेक्टर का, सुलेखा, और इसी का नाम है भोली. जैसे हमारे दो नेम होते हैं, ठीक है, घर का नाम अलग होता है, निक नेम अलग होता है, ऑफिशियल नेम अलग होता है. तो इसका जो ऑफिशियल नेम था वो सुलेखा, सब इसको प्यार से भोली कहते थे. शी इज़ अ यंग गर्ल निग्लेक्टेड बाय ऑल. एक ये छोटी सी बच्ची है लेकिन सब उसको निग्लेक्ट करते हैं. एजुकेशन ट्रांसफॉर्म हर, इट इंस्पायर्स करेज, कॉन्फिडेंस इन हर, एंड शी रेजेस हर वॉइस फॉर हर rights. So the weapon that I told about, that was the education with her also. Education की बदौलत ही उसमें क्या आया? courage आया, confidence आया, and she was able to know about her rights and to take a stand for her rights. ठीक है, तो ये भोली है, छोटी सी जो बच्ची आपको दिख रही है यहाँ पे भोली है. ये इसके फादर हैं और ये इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्कूल. ठीक है, तो अभी छोटी सी प्यारी सी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. इमेजिनेटिव स्टोरी है, एंड दिस इमेजिनेटिव है बट ये मोरल बेस्ड स्टोरी है. विल डेफिनेटली गेट द मोरल.
कैरेक्टर्स देखते हैं सबसे पहले। मेन कैरेक्टर है भोली, सुलेखा। हर रियल नेम इज सुलेखा एंड शी इज नंबरदार राम लाल्स यंगेस्ट डॉटर। स्कूल एजुकेशन चेंजेस हर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। तो इनके फादर का नाम है रामलाल और वो कौन है, नंबरदार है। नंबरदार जैसे पटवारी वगैरह होते हैं, आपने सुना होगा गांव में जो सब देख रेख करते हैं, ठीक है, एक तरह से हेड होते हैं, तो वही है इसके फादर। रामलाल, भोली's father। ये दूसरा कैरेक्टर है रामलाल। He is a prosperous father of 7 children who has narrow mindset. For him, daughter are born for marriage only। 7 बच्चे हैं इनके, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग जो इनकी लड़कियां थी वो सिर्फ मैरिज करने के लिए ही, मतलब उनका, हमको सिर्फ उनको नरिशमेंट करना है, पालन पोषण करना है और उसके बाद उनकी शादी करनी है। तो इस तरह का नैरो माइंडसेट था। विलेज पर्सन थे, ऑथेंटिक विलेज पर्सन थे, तो जैसा और लोगों का माइंडसेट होता है बिल्कुल वैसा ही इनका था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे भोली's मदर। शी इज़ अ टिपिकल कंजर्वेटिव मदर। शी डज नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ भोली। अब भोली सबसे छोटी थी, 7वें नंबर की थी, तो आप खुद समझ सकते हो कितने सारे बच्चे, तो हाउ द प्रॉपर केयर कुड बी गिवन टू भोली एग्जैक्टली हैड हैपेंड। कुछ था भोली में, एक तो भोली के लुक्स की वजह से जो हम आगे देखेंगे, और दूसरी वो सच में भोली पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड की थी। ट्रेडिशनल ऑथेंटिक जितने भी ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स होते हैं सोसाइटी के, विलेज के, वो सब में उस तरह की ये महिला थी, ठीक है। अब नाउ यहाँ आता है भोली's स्कूल टीचर। ये बहुत मेन कैरेक्टर है। शी एजुकेट्स भोली एंड एनकरेजेस हर। ये दिस इज द कैरेक्टर हु ब्रिंग्स द चेंजेस इन भोली's लाइफ। इनकी वजह से भोली की लाइफ में चेंज आता है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। नेक्स्ट है विशंभर। एक ये कैरेक्टर है भोली's prospective husband who is greedy man and a dowry seeker। prospective husband, वो husband बन नहीं पाया था बट उसका लगाया गया था, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि about to be, okay, to be husband जो कैसा था, बहुत लालची था, and he was a dowry seeker, he was demanding dowry during the marriage, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे भोली, रामलाल जो भोली के फादर हैं, भोली's मदर, भोली स्कूल टीचर एंड विशंभर। इनके जो भाई बहन हैं भोली के, उनका ज़्यादा कैरेक्टर का नाम इसमें या कोई भी इस तरह का नहीं दिया गया है, तो इसीलिए उनको कैरेक्टर को एक तरह से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। भोली's फर्स्ट फ्यू ईयर्स। अब हम सबसे पहले देखते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है कि भोली के जो स्टार्टिंग यानी कि चाइल्डहुड से दिखाया है। भोली वॉज वन ऑफ द 7 चिल्ड्रन ऑफ रामलाल। Ramlal is well-to-do man as he is nambardar of the village. There was no lack of comforts in her home, but Bholi was still neglected. She fell off her cot when she was just 10 months old, and her brain suffered some damage and she was slow in learning things. So everyone called her Bholi. An attack of the smallpox at the age of 2 years leaves her poke marks on her entire body. She learned to speak when she was 5, but she stammered. Then everyone made fun of her. Even her parents took her to be just an ugly burden। तो यहाँ पे तो कंप्लीटली भोली के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया गया है कि भोली जो 7 बच्चे थे उसमें सबसे छोटी थी, और जो उसके फादर थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल था, ठीक है, गांव में देखा जाए तो उनको प्रॉस्परस मैन माना जाता था। अच्छे खाते पीते घर के थे, कोई कमी नहीं थी उनके घर में, क्योंकि वो जो गाँव थे उसके नंबरदार थे, एक तरह से आप बोलो तो ये जो पटवारी होते हैं वो थे। अब उनके घर में किसी भी तरह की कंफर्ट की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी भोली को नेग्लेक्ट किया जाता था। सो व्हेन शी वाज जस्ट 9 and 10 months ओल्ड, वो चारपाई से गिर जाती है। कॉट इज कॉल्ड, जो चारपाई होती है, चारपाई जो आपने देखा होगा जूट की जो डोरियां होती हैं उनसे बनाई होती है चारपाई। यू मस्ट हैव नॉट सीन बट सम मस्ट हैव सीन इफ़ यू हैड गॉन इन द विलेज। पहले ये बहुत चला करती थी, ठीक है। तो उसमें जूट की जो बिनी हुई, ठीक है, जैसे उसको ब्रेड बिनते हैं, हमारी छोटी जो गूंथते हैं सेम वैसे ही गूंथ कर और पूरी चारपाई बनाई जाती थी। बहुत टाइट होती थी, बहुत अच्छी होती थी, लकड़ी के उसमें फ्रेम्स लगे होते थे, उसमें लगाया जाता था जूट। तो उस तरह की कॉट, यस दिस इज द कॉट, ये कॉट है। तो इस चारपाई पे वो छोटी सी बच्ची थी, तो वहाँ से वो नीचे गिर गई, सिर के बल गिर गई थी, तो उसके सिर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। इस वजह से वो जो चीज़ें सीखती थी वो थोड़ी सी देर में सीखती थी, मीन्स शी वॉज रिगार्डेड एज अ स्लो लर्नर फ्रॉम वेरी अर्लियर।
अब यहाँ पे सब लोग उसको क्या बोलते थे, भोली, क्योंकि वो जल्दी चीज़ें नहीं सीख पाती थी, तो वो सब कहते थे अरे ये तो बहुत भोली है, देर में चीज़ें सीखती है। उसके बाद वो जब थोड़ी सी बड़ी हुई, लगभग 2 साल की हुई, उसको स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, जिसको आप बोलते हो ना चेचक निकल आना, ठीक है, माता निकल आना, जहाँ दाने हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, तो वो उसको निकल आया। उस टाइम पे वैक्सीनेशन का उसको नहीं किया गया था कोई भी अरेंजमेंट, इस वजह से उसके पूरी बॉडी पे पोक मार्क्स हो गए थे, छोटे 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 छोटे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, उसकी पूरी बॉडी पे छोटे 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 मार्क्स हो गए थे। अब इसके अलावा वो बोलना सीखी थी लगभग 5 साल में, मतलब जब वो कॉट से नीचे गिरी थी, उससे उसका सीवियरली शी गॉट ब्रेन डैमेज, जिसकी वजह से लर्निंग प्रोसेस और स्पीकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें उसकी हैम्पर हो गई थी। 5 साल में भी वो बोलना सीखी, और वो भी वो स्टैमर करती थी। स्टैमर आप बोल सकते हो स्पोक विद पॉजेस, जिसको बोलते हैं ना हकला के बोलना, ठीक है, स्पोक विद पॉजेस, धीरे 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 पॉजेस ले लेके बोलना, तो उस तरह से वो बोल पाती थी, हकलाती थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि जो उसके पेरेंट्स थे वो भी उसको एक अगली बर्डन समझते थे। वो कहते थे इसका क्या होगा, इसका आगे जाकर क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, ना तो ये पढ़ाई लिखाई कर पाएगी, ना इससे कोई शादी करेगा, ये अच्छी नहीं दिखती है। एवरीबडी वॉज रिगार्डेड एज अ बर्डन, सबकी नेगेटिव फीलिंग थी उसके बारे में। Bholi goes to a school. अब आगे चलते हैं। Once the Tehsildar came to inaugurate a new primary school in the village, he asked Ramlal to send his daughter to a school. Ramlal could not say no to him. His wife objects that no one would marry the girls if they went to a school. But then she felt that Bholi is ugly and it will be difficult to get her married. So they decided to send only Bholi to a school. अब एक बार तहसीलदार आते हैं, ठीक है, तहसीलदार आप बोल सकते हो कि जो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं। तहसील इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट होती है ये। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव पड़ता था, उस डिस्ट्रिक्ट के आप हेड मान सकते हो। तो जो डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में तो बहुत सारे गांव आते हैं, तो जितने गांव आते हैं सबके एक तरह से वो हेड होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तहसील। तो जो तहसील का मुखिया होगा उसको तहसीलदार बोलेंगे। तो वो जब गाँव में आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए, भोली के गाँव में आते हैं, तो वो एक इनाग्रेशन करने आते हैं प्राइमरी स्कूल का। मतलब भोली के गाँव में एक नया प्राइमरी स्कूल खुला है। अब वो रामलाल जो थे, वो जो तहसीलदार थे, वो रामलाल से कहते हैं कि तुम यहाँ के नंबरदार हो, तो जो ये स्कूल खुला है इसमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्टेप, यू हैव टू सेंड योर चिल्ड्रन, योर गर्ल टू स्कूल, सो दैट अदर गर्ल्स ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग एडमिशन इन दिस विलेज स्कूल, स्पेशली फॉर गर्ल्स दैट स्कूल वॉज। तो गर्ल्स एडमिशन पे जोर दिया जा रहा था, तो उन्होंने एक तरह से ऑर्डर दिया था, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर्म में भी नहीं बोला कि तुम अपने बच्चों को भेजो, लड़कियों को। अब तहसीलदार से रामलाल नो नहीं कह सकता था, वो उसके हेड थे, ठीक है, वो उससे सीनियर थे। अब यहाँ पर जब वो ये बात अपने घर में बताते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है वो ऑब्जेक्ट करती है। उनके अकॉर्डिंग वो कंजर्वेटिव थी, थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप की, भाई लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए, घर का कामकाज सीखना चाहिए, फिर उनकी शादी हो जानी चाहिए। तो कहते हैं अगर हम किसी लड़की को भेजेंगे तो मे बी दे वुड बी फाइंड डिफिकल्टी, they would be found difficulty in getting married, शादी होने में प्रॉब्लम होगी, कहाँ से लाएंगे। उनके अकॉर्डिंग लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। तब दे बोथ डिसाइडेड दैट भोली ऑलवेज स्टेज एट होम। वो अच्छी भी नहीं लगती है, उसकी शादी होगी या नहीं होगी पता नहीं, उसको कुछ भी, घर में भी रहती है तो भी कोई काम की नहीं है, बाहर इसको भेज देते हैं। एंड दे बोथ डिसाइडेड दैट भोली इज द गर्ल हु वुड गो टू स्कूल। भोली है जो गर्ल जो है वो स्कूल जाएगी, इसकी शादी तो वैसे ही नहीं होनी है, तो उसको स्कूल भेज देते हैं। उनके लिए ये भी नहीं होगा कि भैया आपने अपनी बेटी को नहीं भेजा तो हमारे लिए भी ये होगा, चलोगे कहीं तो वो बाहर जा रही है, कुछ तो सीख रही है। नाउ भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल। अब भोली को स्कूल लेकर जाते हैं। भोली वॉज फियरफुल ऑफ गोइंग टू स्कूल एट फर्स्ट, देन शी वॉज गिवन न्यू क्लीन क्लॉथ्स टू wear, she was given a bath and her hair was oiled. Now she felt better. She thought of a school as a nice place. All these years no one had taken so much care of her. अब यहाँ पे क्या होता है, भोली को कोई ध्यान नहीं देता था। अब टेकिंग केयर क्या, छोटे से बच्चे की आप क्या केयर करोगे, उसको नहलाओगे धुलाओगे, उसका ध्यान रखोगे, उसके हेयर का ध्यान, कपड़ों का ध्यान, उसकी हेल्थ का ध्यान, खाने का ध्यान, कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। बट व्हेन दे डिसाइडेड कि भोली स्कूल जाएगी, अब स्कूल में तो उसको थोड़ा सा ठीक करके भेजना पड़ेगा ना, अदरवाइज टिल नाउ भोली यूज्ड टू वियर ऑल द लेफ्ट ओवर क्लॉथ्स और द ओल्ड क्लॉथ्स ऑफ हर सीनियर, जितने भी उनके एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर थे, अपने सिबलिंग्स के ही कपड़े वो पहनते
पहनती थी। उस दिन पहली बार उसकी माँ ने उसको नहलाया। मतलब भोली को जो भी करना होता था अपने आप कर लेती थी, नहीं करना होता तो कोई ध्यान नहीं देता था, वो थोड़ा बहुत अपने आप ही कर लेती थी। 5-6 साल की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, वो कितना करेगी। लेकिन जब उसको स्कूल जाना था उस दिन उसकी माँ ने उसको नहलाया, नए कपड़े पहनाए, उसके ऑयलिंग किया, देन उसको प्लेट किया। उसके बाद उसको लग रहा था, पहले तो वो बहुत डरी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन उसने कहा, देखा जब कि everybody was doing efforts and all the things that never had been done with her before that, and they all were experienced by her, तो उसको लगा कि मैं कहीं शायद अच्छी जगह जा रही हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा दिखना ज़रूरी है। तो पहले तो उसे बहुत डर लग रहा था, और उसके बाद जब वो तैयार हो गई, उसके फादर ने उसका हाथ पकड़ा एंड ही वॉज जस्ट पुलिंग लाइक द एनिमल, एज यू आर पुलिंग द एनिमल वेरी हॉटिली। तो उसको याद आता है उस टाइम पे कि उनके घर में एक गाय थी, उससे पहले उसका नाम था लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी को थोड़े दिनों पहले घर से बाहर निकाला था। द रीज़न वॉज नॉट गिवन, बट उस तरह से, मतलब लक्ष्मी को भी वो पुल कर रहे थे ज़बरदस्ती। लक्ष्मी वॉज नॉट रेडी टू गो, बट उन्होंने ज़बरदस्ती उसको पुल किया और फिर उसको घर से बाहर निकाल दिया था, बाहर छोड़ आए थे उसको। तो उसको क्या लग रहा था छोटी सी बच्ची को कि द सेम वे हर फादर वॉज डूइंग विद हर, ही वॉज पुलिंग हर हैंड एज इफ शी वॉज नॉट रेडी टू मूव, क्योंकि वो नहीं, उसको नहीं पता था स्कूल क्या होता है, वो उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। शी वॉज हैविंग अ फियर इन हर हार्ट कि जैसे उन्होंने लक्ष्मी को निकाला, मे बी वो मुझको भी बाहर छोड़कर आएंगे। तो फर्स्ट शी वॉज नॉट एबल टू गो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी वॉज रियली कन्फ्यूज कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। Bholi's first day at school. Now, Bholi finds the classroom full of the girls like her. She was afraid and sat in one corner. She was attracted to the colorful picture on the wall. She was much impressed by the realistic picture of the birds and animals. The teacher asked her name. Bholi stammered and then started crying. After the other children leave, the teacher came back to her. She called her lovingly. This time, Bholi was able to speak her name better. The teacher encouraged her. She asked her to be fearless. She also told her to come to school every day, and Bholi felt as if a new life was beginning for her. तो पहला दिन कैसा रहा? आप कुछ भी करे, भोली रेजिस्ट करे, कुछ भी करे, उसको स्कूल तो जाना ही था। उसके पिता उसको ज़बरदस्ती ले गए और स्कूल में छोड़कर आ गए। अब उसके फर्स्ट डे पे क्या हुआ, जब वो क्लासरूम में गई तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ उसके जैसे बैठी हुई थी, लेकिन उसको बहुत डर लग रहा था। एंड दैन शी जस्ट फाउंड अ कॉर्नर एंड वहाँ पे वो बैठ जाती है उस कॉर्नर में। अब जब वो क्लास में बैठी हुई थी, शी स्टार्टेड लुकिंग हेयर एंड देयर, तो वॉल पे बहुत सारी कलरफुल पिक्चर्स लगी थी, उसको देखकर अच्छा लगा। वो जो पिक्चर्स थी बिल्कुल रियल पिक्चर्स लग रही थी, बर्ड्स की पिक्चर्स थी, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की पिक्चर थी। अब टीचर जो थी वो उसके पास आती है, सारे नए बच्चों से वो उनके नाम पूछ रही थी, तो भोली से भी उन्होंने उसका नाम पूछा। अब जब भोली से नाम पूछा तो भोली वॉज स्टैमरिंग, ठीक है, तो वो इस तरह से नाम बता रही थी, इस तरह से, अब बोल नहीं पाती थी, वो स्टैमर करती थी, तो वो इस तरह से नाम बता रही थी, भो 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 भो, ठीक है। एंड देन शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, तो वो रोने लगी। उसमें कॉन्फिडेंस था ही नहीं, उसने कभी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, तो उसको रोना आ गया, वो रोने लगी। देन अ टीचर डिड नॉट फोर्स हर। उसके बाद जब छुट्टी हुई, ऑल द चिल्ड्रन वेंट अवे, उसके बाद टीचर उसके पास आती हैं एंड देन कॉल्ड हर लविंगली, बहुत प्यार से उसको पैट करती हैं उसके बैक पे, और फिर उसका नाम पूछती है, मुझे अपना नाम बताओ। अगेन दिस टाइम वॉज शी वॉज ऑल्सो स्पीकिंग इन द सेम वे, भो 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 भो, और बाद में बहुत देर बाद वो अपना नाम बताती है, भोली, ठीक है। तो इस वे में वो नाम बताती है, और उसकी जो टीचर होती है उसको बहुत इनकरेज करती है कि वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा से नाम बताया अपना। और उसके बाद उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो रो रही थी तो उसको थोड़ा सा इनकरेज करती हैं, और वो किससे प्रॉमिस लेती है कि भाई तुम रोज स्कूल आओगी। तो फर्स्ट डे को जो भोली स्कूल गई थी, स्टार्टिंग में वो बहुत डर रही थी, लेकिन बाद में उसको अच्छा लगा। उसको क्या लगा कि कुछ नया शुरू होने वाला है उसकी लाइफ में। A match for Bholi. After a few years, Bholi's parents get a marriage proposal for her. Ramlal is not very happy. The man was a widower and grown-up children, with grown-up children, but his wife was unconcerned. She just feels that as Bholi was so ugly, that proposal was good for her. Her father wants to know how Bholi felt about the proposal, but her mother refused to ask Bholi about it. अब उसके बाद से भोली रोज स्कूल जाने लगी, उसने रोज स्कूल अटेंड करने लगी। अब वो अच्छे से पढ़ लेती थी, अपना नाम अच्छे से बोल लेती थी, स्टैमरिंग भी उसका कम हो गया था, एंड शी स्टार्टेड गेनिंग कॉन्फिडेंस, शी स्टार्टेड फेसिंग द पीपल. She began to speak, she began to just lose the fear and
फेस द सोसाइटी, द आउटसाइड वर्ल्ड। काफ़ी मतलब एजुकेशन से चेंज तो आता ही है, सेम वैसा ही एजुकेशन से चेंज आ रहा था भोली में। उसके बाद जब भोली थोड़े सालों के बाद जब वो मैरिज के लायक हुई तो उसके लिए एक मैरिज प्रपोजल आया, ठीक है। जो लड़का था, ठीक है, वो लड़का नहीं, वो आदमी था, वो विडोवर था, यानी कि ही ऑलरेडी लॉस्ट हर वाइफ, ठीक है। विडोवर बोलते हैं विदुर, जिसकी जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो अकेला था और उसके ग्रोन अप चिल्ड्रन थे, बड़े बड़े बच्चे थे। तो ये जो प्रपोजल था रामलाल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। रामलाल जो थे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी छोटी सी बच्ची की शादी इतने बड़े और एक तरह से देखा जाए तो अडल्ट मैन से, उससे दुगनी उम्र का वो था, उससे हो रही है, जस्ट ऑफ फादर एज, ठीक है, हर फादर्स एज का था वो। लेकिन यहाँ पर उसकी जो माँ थी उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, अनकंसर्ड आप बोल सकते हो, अनकंसिडरेट, उनको बिल्कुल चिंता नहीं थी। उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारी जो भोली है वो इतनी अगली लगती है देखने में, उसके लिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है। जो ग्रूम आया था उसका नाम था विशंबर, ये अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, दिस वॉज द नेम, यस, विशंभर, ठीक है, भोलीज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, विशंभर। तो विशंभर जो था उसकी ग्रॉसर की दुकान थी, ठीक है, ग्रॉसरी की दुकान थी, राशन की जो दुकान होती है वो थी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस था, उसका खुद का घर था। ये सारी चीज़ें उन्होंने देख ली एंड उनको लगा कि येस ही वुड बी द परफेक्ट मैच फॉर भोली। बट अकॉर्डिंग टू रामलाल, रामलाल वॉज हैविंग अ लिटिल सस्पिशन, बट उसकी माँ ने कहा कि कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मदर ने ये भी मना कर दिया कि भोली से पूछने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब रामलाल ने कहा कि एक बार भोली से पूछ लेते हैं कि वुड शी बी रेडी फॉर दैट, बट उसकी मदर ने मना कर दिया, नो, कि भोली के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। नाउ भोली स्टैंड अप फॉर हर राइट्स। अब यहाँ पे राइट्स का मतलब है जो उसके हक थे, अधिकार थे। When the wedding was about to take place, Vishwambar Nath asked for 5,000 rupees to marry Bholi as she had poke marks. He also threatens to walk away from the ceremony. Ramlal was afraid of the humiliation and so with tears in her eyes, he hands the dowry money to Vishwambar. Vishwambar proceeds to this garland Bholi, but Bholi throws the garland away. She asks her father to take back the money and refuses to marry the greedy coward. Everyone goes away. Ramlal asks her what she will do now. She just tells him she would work as a teacher in the same school where she had studied. Her education has changed her outlook. अब शादी का दिन भी आ गया, ठीक है, जब उसकी शादी होनी थी तो विशंबर बारात लेके आ गया। अब शादी के टाइम पे ही when विशंबर was there ड्यूरिंग द सेरेमनी, जहाँ पे बैठा जाता है वो बैठा था, देन भोली को लाया जाता है। तो गलती से या किसी वजह से जो भोली का घूंघट था वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है एंड विशंबर वॉज एबल टू सी भोलीज फेस। पहले उसने नहीं देखा था तो वो देख लेता है कि भोली के फेस पे बहुत सारे पोक मार्क्स हैं, तो वो मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा उसको इंटाइज करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं एक शर्त पर शादी करूँगा, अगर मुझे 5,000 रुपये दहेज के मिलेंगे। तो उसने कितनी डिमांड रखी थी? 5,000 रुपीज़ उसने डिमांड रखा कि मुझे चाहिए तभी मैं ये शादी करूँगा, अदरवाइज मैं ये शादी छोड़कर चला जाऊँगा, मैं बारात वापस ले जाऊंगा। अब जो रामलाल थे और वो बहुत ज़्यादा डर गए क्योंकि उनको ह्यूमिलिएशन इज कॉल्ड इंसल्ट, उनको बहुत इंसल्ट फील हो रहा था। पूरा गांव, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, तो उन्होंने अपने आंखों में उनके आंसू आ गए। उसके बाद ही वेंट इनसाइड, वो अंदर गए, ओपन्ड द कबर्ड एंड टुक आउट द मनी एंड हैंडेड ओवर टू विशंबर। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ये मनी ले लो बट डोंट गो बैक, सेरेमनी छोड़कर मत जाओ। उसके बाद जैसे ही विशंबर ने आगे प्रोसीड किया, फर्दर प्रोसीड किया, गार्लैंड इज कॉल्ड, जो फूलों की माला होती है, जो फूलों का हार होता है, वो जैसे ही पहनाने वाला था तभी भोली ने वो फूलों की माला ली और उसको फेंक दिया। उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, आई वुड नॉट मैरी टू अ ग्रीडी कावर्ड। ग्रीडी इज कॉल्ड लालची, कावर्ड इज कॉल्ड टिमिड पर्सन। तो उसने कहा कि ऐसे कायर से, ऐसे लालची से मैं शादी नहीं करूंगी। एंड जितने भी लोग वहाँ पर थे वो चले गए। वहाँ पर उस टाइम पर भोली की टीचर भी खड़ी थी, ठीक है, वो भी आई थी शादी देखने के लिए, तो टीचर्स प्रेजेंस वॉज देयर। ये ध्यान रखेंगे, टीचर एक कोने में खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, ओनली भोली वॉज टेकिंग अ स्टैंड फॉर हर सेल्फ। उसने खुद बोला, उसने अपना घूंघट उतार दिया एंड बिफोर एवरीवन शी वाज स्पीकिंग दैट आई वाज रेडी टू मैरी यू इवन आफ्टर यू आर ऑफ माय फादर्स एज, बट
your characteristic traits are not up to the mark so that I can marry you, you are a greedy person, you are a coward person. और वो इतने अच्छे से बोल रही थी, everyone was surprised. Why? Because nobody had given any importance to Bholi earlier. कभी किसी ने भी नहीं दिया, सब यही जानते थे तो हकलाती है, इसको कुछ नहीं आता, सीखती नहीं है, बहुत ज़्यादा अगली दिखती है. पहली बार the whole village was witnessing the smartness, the speech that Bholi had given. बिना हकलाए हुए वो कंटिन्यूस बोल रही थी. जो टीचर थी, शी वॉज रियली फीलिंग वेरी प्राउड. और उसके बाद रामलाल जब वो वापस चले जाते हैं, सब लोग वापस चले जाते हैं, वो खुद भेज देती है कि मुझे शादी नहीं करनी. तब रामलाल कहते हैं कि तुम क्या करोगी, ये तुमने जो एक बार जब घर से बारात वापस चली जाती है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि कोई और आएगा तुमसे शादी करेगा. यू आर नॉट मीन्स शी वॉज नॉट लुक लाइक दैट एंड शी वॉज नॉट डिजर्विंग गर्ल अकॉर्डिंग टू her parents. तो वो कहते हैं, जो भोली है वो कहती है कि no need to worry about me, my father and mother. I have selected my career. I am going to be a teacher in the same school where I have done my study. And this was the power that Bholi was able to tell about all these things and to take her rights, and that was the power of education. तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है जहाँ पे भोली ने डिसाइड कर लिया था कि उसको फ्यूचर में क्या करना है, और उसने बहुत क्लियर कर दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू बी अ बर्डन ऑन यू बोथ ऑफ द पेरेंट्स. यू बोथ needed not to worry about me because I have chosen my way. I would be a teacher in the same school and I would teach the children. ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी और बहुत मोरलफुल स्टोरी थी. अब हम इसके हाईलाइट्स देखते हैं. Bholi, the fourth daughter of Ramlal in the village. अब फोर्थ डॉटर थी, उनकी 3 लड़कियां थी. ठीक है, 4 लड़कियां थी उनकी और 3 लड़के थे. तो जो लड़कियों में जो सबसे छोटा था, 7 में सबसे छोटी कौन थी? भोली थी. 4th नंबर की वो डॉटर थी. रामलाल in village was a simple pockmarked girl, Nambardar Ramlal in a village, and Bholi was a simple and pockmarked girl. Her real name was Sulekha. ये याद रखेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर में बार बार भोली नाम रिपीट हुआ है, तो प्लीज रिमाइंड इट कि सुलेखा उसका जो ऑफिशियल नेम, रियल नेम सुलेखा था. At 10 months, she fell off a cot, damaging her brain and making her simpleton. At 2 years, she was a victim of a smallpox and left her pockmarked. She learned to talk at 5 years but used to stammer. When a primary school was opened in the village, the Tehsildar told Ramlal to send the daughter to school. So Ramlal's wife felt that sending daughters to school affected their chance of marriage. Then Bholi's parents decided to send Bholi to school because they felt she would be difficult to get married away. As she is ugly. Bholi was initially afraid of going to school, but due to the encouragement of a teacher, she continued her studies. After a few years, a village became a small town and Bholi received an offer of marriage from the widower who was lame but rich. He also did not ask for any dowry. Now, lame, आप बोल सकते हो, means he was having difficulty in walking. डिफिकल्टी इन वॉकिंग, जिसको बोलते हो ना थोड़ा सा लड़खड़ा के चलना, लंगड़ा के चलना. ठीक है, तो वो थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था. जो विशंबर था ना, थोड़ा सा लंगड़ा के चलता था वो. And he also did not ask for any dowry. But at the time of the wedding, the bridegroom saw Bholi's pockmarked face and demanded 5,000 rupees as dowry, which Ramlal gave. यहाँ पे bridegroom किसके लिए आया है? bridegroom आया है विशंभर के लिए. ठीक है, कौन था दूल्हा? bridegroom is called दूल्हा. दूल्हा कौन था? विशंभर. उसने 5,000 रुपए मांगे. Bholi refused to marry the greedy widower, and she later on said that she will take care of her parents and teach in the same school where she got her education. लास्ट में उसने क्लियर कर दिया था कि मैं घर में ही रहूंगी, सबकी शादी हो जाएगी, सब चले जाएंगे इधर उधर, बट मैं अपने मदर और फादर के साथ रहूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी, टेक केयर करूंगी और अपना जॉब करूंगी टीचर का. ठीक है, सो दिस वॉज द चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. Who is he? यहाँ पे he कौन है? अब he का कोई भी जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है. he कौन है यहाँ पर? तहसीलदार. कौन है यहाँ पर? he तहसीलदार.
What example does he want Ramlal to set? क्या एग्जाम्पल की बात की थी उन्होंने? He told Ramlal to set an example by sending his own daughters first to school. What does the word revenue mean? Revenue का मतलब क्या है? इस लाइन में, इन लाइनों में रेवेन्यू का मतलब क्या है? लेट मी फाइंड द वर्ड, वेयर इज रेवेन्यू गोन? रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं लिखा है, बट रेवेन्यू का मीनिंग हमको यहाँ पे लिखना है. रेवेन्यू इज कॉल्ड द टैक्स, हम जो देते हैं, दैट इज कॉल्ड. What part of the speech is the word an? Is the extract. An क्या होता है? An एक आर्टिकल होता है, सिंपल. पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? आपको बताना है कि ये वर्ड क्या है, तो an एक आर्टिकल होता है. And in her smiling eyes was the light of the deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completing of her masterpiece. तो यहाँ पे क्या उसने complete किया था? Her masterpiece. So what satisfaction did the teacher have? अगर यहाँ पे हर बोला जाए, हर स्माइलिंग आईज, तो यहाँ पे हर किसके लिए बोला है? दैट एन आर्टिस्ट फील. हर किसके लिए आया है? टीचर के लिए आया है. कौन सी टीचर? भोली की टीचर. जो भोली की टीचर थी वो कहाँ थी? उनकी मैरिज में खड़ी हुई थी. शी वॉज स्पीकिंग नथिंग बिकॉज शी वॉज हैविंग दिस कॉन्फिडेंस दैट भोली वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ दिस मैटर. तो वो बहुत खुश हो रही थी, उनकी आंखों में बहुत सेटिस्फेक्शन था क्योंकि उन्होंने अपना एक मास्टरपीस कंप्लीट कर लिया था. एंड शी वॉज हैविंग अ काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन अबाउट दिस. What satisfaction did the teacher have? The teacher have about to know the right, means teacher have the satisfaction that her pupil started know about her own right. Who was the masterpiece? कौन था masterpiece? भोली थी भाई. उन्होंने कौन सा masterpiece किया? भोली. Find a word from the extract which means thinking deeply. Contemplating, simple, thinking deeply. Then what is the opposite of deep? Deep का मतलब क्या है? Deep is called very deep and deep का जो opposite होता है that is shallow. आगे चलते हैं. Bholi found her teacher to be different from others. How? Others had always neglected Bholi and they made fun of her all the time. But she found her teacher to be different. Her voice was calm, her manner comforting, and touch was full of affection. तो भोली को जो टीचर थी वो अलग कैसे लगी दूसरों से? दूसरे थे वो क्या करते थे? सब एक ही काम करते थे. ईच एंड एवरी वन मेड हर फन एंड उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते थे. बट जो टीचर थी, ओनली शी वॉज देयर हु वॉज अ लिटिल डिफरेंट. जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उनकी जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा कूल एंड काम थी. अफेक्शन, लव था उनकी वॉइस में, और उनकी जो वॉइस थी और उनका जो टच था, वो जब भी टच करती थी, उसको पैट करती थी बैक पे, वो फुल ऑफ अफेक्शन था, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता था. उनको लगता था कि हाँ, हार्टली शी लव्ड हर. What objections does Ramlal have to Vishambhar's proposal? Ramlal was not very happy with the proposal. He did not like the fact that Vishambhar was of his age. He had a limp and children were quite grown up. It was not a very satisfactory proposition. अब यहाँ पे रामलाल को विशंभर का जो प्रपोजल था वो क्यों पसंद नहीं आ रहा था? क्योंकि जो रामलाल थे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस प्रपोजल से, क्योंकि जो विशंभर था वो उनकी एज का था. मतलब बिल्कुल अगर देखा जाए तो वो पिता की एज का था जिससे भोली की शादी हो रही थी. इसके अलावा वो थोड़ा सा लिम्प भी था, ठीक है, हैंडीकैप था, उसके बड़े बड़े बच्चे थे जो ऑलरेडी बहुत ग्रोन अप हो चुके थे. तो उसको एक काइंड का सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था. उनको ये जो आइडिया था वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा था. ठीक है, प्रोपोजिशन आप बोल सकते हो, एनी थॉट और आइडिया जो था, जो ये रिश्ता आया था वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. Why do Bholi's parents accept Vishambhar's marriage proposal? Bholi's parents accepted Vishambhar's marriage proposal because they were happy that he was well off and had not asked for dowry. उसने उस टाइम पे कोई डाउरी की डिमांड नहीं की थी, लेकिन जब उसने भोली का फेस देखा था, that time he demanded 5,000 rupees. Why did Vishambhar's marriage with Bholi not take place? Vishambhar's marriage with Bholi did not take place because he had demanded a dowry of 5,000 rupees from her father for the marriage, so Bholi refused to marry him. वहाँ पे भोली को पता चल जाता है कि भाई उसको भोली को पता था कि he was of her father's age, even then she became ready to get married with that man. But जब उसने देखा ये तो बहुत लालची है और वो educated थी, इसलिए उसने मना कर दिया. Bholi is a child different from others. This difference makes her an object of the neglect and laughter. Elaborate.
Society does not tolerate the differences very easily. Bholi is not like others. She is slow of her age and she stammers when she is speak. Smallpox leaves are all covered with poke marks. As a result, she has to suffer a lot. Her parents do not even bath her. She is ignored and neglected. They take her only as a burden. People laugh at her. Children imitate her when she speaks. So she remains silent most of the time and she has no confidence of self-esteem. Society must realize that it must accept those who are different. They must be treated with the same love and respect as others. तो यहाँ पे कंप्लीट आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है भोली को, सबसे पहले वो डिस्क्राइब करना है. ट्रीटमेंट गिवन बाय हर ओन फैमिली मेंबर्स, बाय द फ्रेंड्स, बाय द सेम एज ग्रुप, बाय द आउटसाइडर, बाय द विलेजर्स. सबके जो भी ट्रीटमेंट था वो देना है और उसका कारण क्या था, उसका रीज़न क्या था. तो स्टार्टिंग में हमने उसको बता दिया कि वैन शी वॉज ऑफ 10 months ऑफ एज, देन 2 years, देन 5 years, किस किस तरह से स्मॉल पॉक्स, स्टैमरिंग, ब्रेन डैमेज, ये सारी उस चीज़ों ने उसको इफेक्ट किया. एंड then how other children of her village, they used to imitate her. Imitate is called, उसको कॉपी करते थे. ठीक है, जब वो बोलती थी वो थोड़ा सा हकला के बोलती थी तो बच्चे उसका फन बनाते थे और उसको कॉपी करते थे. उसके बाद जो सोसाइटी थी उसको भी इसी तरह से ट्रीट करती थी. बट यहाँ पे बताया गया है कि जो सोसाइटी है उसको ये रियलाइज होना चाहिए. वाई? बिकॉज नाउ द सोसाइटी इज बिल्ट ऑन द शोल्डर्स ऑफ एजुकेटेड पर्सन. एजुकेशन का मतलब क्या है कि इफ समवन इज विथ सम डिफरेंस from among us, then we should not treat differently to those person. Already उनको थोड़ी और या कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं अकेले. तो हमको उनको ये और एहसास नहीं कराना चाहिए कि they are not acceptable in the society. We have to treat them in the same manner by giving the same respect and love as we are giving to other person. Bholi chose a dignified life of service rather than surrendering herself to a greedy old man for the rest of her life. Education provides the required stimulus to overcome one's personal barriers. Explain the role of education in shaping the life of a child with respect to the lesson Bholi. अब यहाँ पे भोली के कॉन्टेक्स्ट में हमको एजुकेशन का बेनिफिट या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना चाहिए towards framing the personality of a person, right? Education is the answer to all the social ills. Illiteracy and ignorance bring nothing but poverty, suffering and misery. Bholi lacks confidence initially because of her disabilities. She is silent, timid and weak in the mind. Her ugliness and her stammer do not let her progress. She is afraid to speak as others made fun of her. School changes her life completely. It opens a new world of hope for her. Her teacher treats her with love and kindness. Her affection and support help Bholi to have faith in herself. She studies and grows into a confident young woman. She knows her rights and she asserts them as well. She refuses to marry a man who demands dowry. Thus, being educated changes the life of Bholi. पहले हमने क्या लिखा? पहले जो भोली की लाइफ में, अब भोली के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है तो एकदम से हम एजुकेशन के बेनिफिट्स नहीं स्टार्ट करेंगे. पहले हम भोली का बताएंगे कि भोली को क्या क्या प्रॉब्लम थी और एजुकेशन से भोली के जो फ्यूचर था उसकी लाइफ में क्या चेंज आया. तो यहाँ पे भोली की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई हैं. सबसे पहले बताया है कि भोली किस तरह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी. वो बहुत साइलेंट थी, टिमिड थी और वीक थी. क्यों? क्योंकि वो उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था. कॉन्फिडेंस नहीं होने की क्या क्या वजह थी? क्योंकि वो अगली थी, वो स्पीक नहीं कर पाती थी अच्छे से और वो कोई भी प्रोग्रेस शो नहीं कर रही थी. एजुकेशन जो है एक वेपन है हर तरह की सोशल इल्स का, वेदर इट इज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द यंगर मेंबर ऑफ द सोसाइटी और द एल्डर मेंबर ऑफ सोसाइटी. एजुकेशन जो है वो हर चीज़, हर तरह की सोशल इविल्स का आंसर है. इलिटरेसी और इग्नोरेंस, अगर आप इलिटरेट हो, अगर आप इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट इज कॉल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन द सराउंडिंग, यू नो नथिंग अबाउट दैट, तो आप कैसे कर पाओगे प्रोग्रेस? नहीं कर पाओगे. तो आप पॉवर्टी में ही रहोगे. ठीक है, मतलब एजुकेटेड आप नहीं हो, आपको किसी की चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको अपने राइट्स के बारे में भी नहीं पता है. मीन्स यू जस्ट गोइंग टू सफ़र योर एंटायर लाइफ इन पॉवर्टी. बट यहाँ पे स्कूल ने भोली के पूरी लाइफ को चेंज किया. उसकी जो स्कूल टीचर थी उनके लव और सपोर्ट से भोली में कॉन्फिडेंस आया और
एक कॉन्फिडेंट यंग वुमेन बनने के बाद उसने अपने अधिकारों को पहचानना शुरू किया और फिर जो कॉन्फिडेंस आया उसने अपने लिए ही एक डिसीजन लिया एंड शी रिफ्यूज टू गेट मैरी विद दैट ग्रीडी पर्सन, राइट। तो ये जो थी भोली के लाइफ में जो चेंज आया था वो एजुकेशन की वजह से आया था। तो यहाँ पे हमने भोली के कंटेक्स्ट में एजुकेशन के बेनिफिट्स और कॉन्ट्रीब्यूशन लिख दिया। Now word meanings are there and you have to go through it, you must go through it, and at last this is the small summary of the chapter. The chapter is not very hard, the vocabulary is not very hard, but you have to solve lots of comprehensions to get this chapter and text very much strengthened with you for the upcoming examination, right? So here I'm ending my video, and in next video I'll bring the next chapter. You have to go through the text and this video, but word meaning अगर आप text नहीं पढ़ रहे हो it's okay because all the important point I have already included, but word meaning पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक बार summary पढ़ लेना and you will be set, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, today is 15, ओके। सो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, अच्छे से अपना टाइम टेबल बनाओ, जस्ट स्टॉप डूइंग एनीथिंग एल्स एंड टोटली फोकस टुवर्ड्स योर स्टडीज, ओके। टेक